Hello viewers, my name is Rahul Pal. I'm from Cape Breton University and today I'm live here on Facebook page of Net Worth Immigration, and today we will be talking about the university, Cape Breton University, location Nova Scotia, and different programs available in university, what all are the academic requirements, English requirement. So we'll be talking about these all things. Before that, first of all, I would like to say thanks to the entire team of Net Worth Immigration. And today we'll be having a detailed discussion. We'll be having the information about university and the location and what all advantages, what all opportunities you can have at this place being in Cape Breton University. Plus, if you have any doubts, any comments, any questions you want to have any information about, you can put your comments. You can leave your comments here in comment section. At the end of this session, I'll go through all the comments one by one and answer your queries. I'll wait for some seconds for some more viewers to join in so that we can have a productive session today. So that so many people can watch us, can have the information about the university and the location. Also guys, I would recommend you to be at home nowadays due to COVID-19. So follow all the guidelines provided by the government of the country and stay home, stay safe. Use your mask always whenever coming out of your houses. Always, try to not come out of your houses. If it is necessary only, then you should come out of your house and use mask. Wear mask whenever you are out, right? So that all the precautions you should take while being at home. I think we should start the session now. We'll start with the location first. I would like you to know the exact location where university is situated. So the exact location is in Canada, East Coast Canada. Nova Scotia is the province. In Nova Scotia, we have a place, Cape Breton. Cape Breton is considered as an island, which is #1 beautiful island in entire Canada, #1 in Northern America, and #3 worldwide. It is a prime tourist spot in Canada, in Nova Scotia, and people from different countries, they come to the place to see the beauty of this place. It is naturally so beautiful, and especially Americans, they are fond of this place. They usually come, and also the place actually has got some advantages for the students. The city where the university is situated on Cape Breton, it is Sydney, Canadian Sydney, where we have campus of Cape Breton University. And Sydney has got, it is second fastest growing city of the Nova Scotia, and the campus we have got in Sydney City, Cape Breton University, it is a huge campus, beautiful campus we have got, which is just 5 minutes away from the Sydney airport. We do have an airport in Sydney City, and it is just 10 to 15 minutes away from the center area of this city, right, downtown. So campus is really beautiful with world-class infrastructure. Before going to the institution, Cape Breton University, I want to tell you some advantages you can have, some opportunities you can have at this place in Nova Scotia. So I'll start with the #1, which is a medical advantage you can have at this place. Any student going to Canada must have a valid insurance for 1 year. And after 1 year, after 12 months, you have to get it renewed. You have to buy another insurance. You have to buy, other insurance, because once you have taken, it would be expired after 12 months. But if you are going to Nova Scotia for the studies, so the provincial government offers you MSI card, a medical card, which remains valid till the time you are there in Nova Scotia, and you can meet all your medical expenses afterwards through this card free of cost, right? So that's the medical services provided by the provincial government in Nova Scotia. Then next advantage is the
Weather conditions. Weather conditions in Nova Scotia, it is pretty favorable. This is not that harsh weather conditions you are going to experience here. It is moderate weather condition we experience here in Nova Scotia. In terms of the temperature, it remains in between 0 to -9 during winter season. During summer season, it goes up to 25, 28, even 30 degrees, which is quite hot. And in other seasons, spring and fall, the temperature it remains approximately sometimes 15 degrees, 18 degrees, 17 degrees, like that. I can say it remains in between 12 to 30 degrees, right? So that's the kind of atmosphere, kind of weather conditions you experience here, which is not that freezing cold, not harsh weather conditions. No, this is not the case with Nova Scotia. You can easily adapt it, easily get adjusted here in terms of weather conditions. You do not face such issues. Then the next advantage is the living expenses. Living expense, it is quite affordable, reasonable here in Nova Scotia, in Sydney City. For an example, on campus hostel accommodation in Cape Breton University you can have just for approximately $4,500 for a year. Yes, yearly accommodation approximately $4,500 in Cape Breton University hostel accommodation dormitory. We do have other type of accommodation, apartments, private rooms on campus, so the price range it varies accordingly. Then we have another advantage, off-campus accommodation or the living expenses. If I talk about, so for a month approximately $600 you can meet your monthly expenses, including your room rent, your grocery, your travel part. For $60 you get a bus pass through which you can travel entire Cape Breton, not only Sydney City, entire Cape Breton you can travel just for $60, unlimited for a month. That's not that expensive, it is reasonable, it is affordable. Then next advantage is the international exposure. The place is with lot more foreigner population, right? Here we have got population from different countries, majorly actual Canadians we have. If I talk about Cape Breton University, we have got more than 5,000 students. Out of 5,000, we have got 1,000 Indian students and 8 to 900 from different countries apart from India and Canada. Rest all we have got actual Canadian students. So you get that multicultural environment on campus. You get a lot more local students studying with you. You actually get that international exposure, international level skills which is required by a student at the destination like Canada. So you can actually have the atmosphere and the environment which is required for an international student to compete, to become a good professional and to compete in the international market. Then the next advantage is the fee structure of the university, Cape Breton University. It is affordable, it is competitive within public universities and public colleges. For some programs it is really competitive within colleges even. Then in terms of the university, Cape Breton University is the public university, government funded university it is, and the history of the Cape Breton University is for almost 70 years, right? So it has got the history of 70 years in Nova Scotia. And in university on campus we have got football ground, basketball court, tennis court, gym, research center where scientists they do researches. We also have restaurant on campus, cafeteria, libraries, workshops, labs, and CBU's campus is known as #1 self-energy generating campus in entire Northern America region. Also, we have variety of the programs and we provide some services to these students, some unique kind of services. You can have free visa counseling sessions on campus, free of cost. You can have free airport pickup from the university side
from the Sydney airport, and you can have a drop anywhere where you want in the city. If you want to come to the campus, you can come to the campus. If you want to go to any place where you have arranged the accommodation for you, you can have drop there as well. Also, in terms of the programs, we have got varieties of the programs. I'll start with the hospitality and tourism. Bachelor of Hospitality and Tourism Management. The duration is 3 years, right? I'll tell you each and everything, in Hindi as well during this session. So program details I'll give you in Hindi as well as in English, right? So that all the students can understand it in a better way, and all the parents also can understand it in a better way, right? So सभी लोगों को ठीक से, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस टाइम पे देख रहे हैं हमारे वीडियो लाइव सेशन, मैं उनकी ईज के लिए सभी को ठीक से चीजें समझ आए, मैं हिंदी में भी इसका रूपांतरण कर दूंगा, मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा सारी चीजें, सारे प्रोग्राम्स और उनकी डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट। तो जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं अभी, वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। 3 साल का ड्यूरेशन होता है। 3 इयर्स के प्रोग्राम में आपको 2 पेड इंटर्नशिप मिलते हैं, यानी कि आपको 6 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं और उन्हीं 6 सेमेस्टर में 2 पेड इंटर्नशिप भी हैं, जिसमें आप एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, हैंडसम अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं कनाडा में प्रोग्राम के साथ साथ ही, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है 2 पेड इंटर्नशिप इस प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात है, इस प्रोग्राम में जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं 3 साल के, वो मिलते हैं 90 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। इससे एक और आपको सर्टिफिकेशन मिलता है एक्स्ट्रा, वो होता है IHG अकेडमी सर्टिफिकेशन, जो कि IHG अकेडमी आपको अवार्ड करता है अगर आप CBU से हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम करते हैं। और ये IHG अकेडमी के साथ CBU जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 पार्टनर यूनिवर्सिटी है पूरे कनाडा में। केब्रिटन यूनिवर्सिटी इज द नंबर 1 पार्टनर इंस्टीट्यूशन विद IHG अकेडमी इन एंटायर कैनेडा। ऑल्सो you earn 90 credit points, which matters a lot out of this program, hospitality and tourism, getting 2 paid internship, earning really good during the program, and you will be considered much capable, and your profile would be much stronger than any diploma holder 2 years, right? So ये प्रोग्राम है आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। द लोकेशन इज नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, जो लोकेशन है वो जाना जाता है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं यहाँ पे बहुत अच्छी, प्रोग्राम के साथ भी प्रोग्राम के बाद भी। इसके साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट क्या है इस प्रोग्राम में, कौन स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है? कोई भी स्टूडेंट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है जिसने 12th क्लास में ईयर 12 में मैथमेटिक्स पढ़ा है, या फिर इकोनॉमिक्स पढ़ा है, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से 12th किया है विदाउट मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के, तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट है किसी भी यूजी प्रोग्राम का CBU में, इट इज ओवरऑल 55%, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%, यानी कि ओवरऑल आपका 55% होना चाहिए। और कोई भी मेन जो 5 सब्जेक्ट हम 12th में पढ़ते हैं इंडिविजुअली अलग अलग, 50% से कम मार्क्स ना हो, तो वो उस बच्चे को एडमिशन मिल जाता है यूजी प्रोग्राम्स में, CBU में, केब्रिटन यूनिवर्सिटी में। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, जो अगला प्रोग्राम है, वो है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ओवरऑल ड्यूरेशन है 4 साल, 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। इसमें आपको क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं 120 पॉइंट्स आप अर्न करते हो 4 साल की डिग्री से कनाडा में। अभी आपने 3 साल का प्रोग्राम मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आपको 90 पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आप क्रेडिट अर्न कर रहे हैं 120। जब आप कोई 2 साल का डिप्लोमा करने जाते हैं, यूजी डिप्लोमा, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं 60 मिलते हैं उसमें से आपको क्रेडिट पॉइंट्स। लेकिन जब आप 3 साल का करेंगे कोई एजुकेशन तो 90 मैक्सिमम, और जब 4 का करेंगे तो 120 तक मिलते हैं। तो जितने ज्यादा पॉइंट्स आप अर्न करते हैं 12th के बाद कनाडा में, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है, उतने ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, उतना ज्यादा आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखते हुए कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए, राइट।
तो जो 3 इयर्स हॉस्पिटैलिटी में प्रोग्राम बता रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप जा सकते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड बैचलर लेना है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड कोई भी यूनिवर्सिटी आपको मना नहीं करेगी एडमिशन देने में मास्टर डिग्री में, अगर आप 4 साल का स्टैंडर्ड बैचलर बीबीए जैसा ले लेते हैं यहां से एक पब्लिक यूनिवर्सिटी से, बहुत मैटर करता है। बीबीए में आपके पास डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडीज होते हैं यहाँ पे, जैसे कि नंबर 1 अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल स्टडीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मार्केटिंग। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो होता है, या तो आपने मैथ्स पढ़ा है 12th में तो आप जा सकते हैं, अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है विदाउट मैथमेटिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड जा सकते हैं, 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से विदाउट मैथमेटिक्स आप जा सकते हो। उसके साथ साथ मेरे पास एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम है विच इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 2+2, इसका ड्यूरेशन है 2+2, इसको हम 2+2 बोलते हैं क्योंकि इनिशियली 2 years student would be studying in Caperton University, for rest of the 2 years student would be getting transferred to Dalhousie University Halifax। तो 2 साल स्टूडेंट सीबीयू में पढ़ता है, बाकी के 2 साल पढ़ने जाता है डलहौजी यूनिवर्सिटी में हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया। क्या एडवांटेज होते हैं यहाँ पे स्टूडेंट को, 2 साल सीबीयू पढ़ रहे हैं, 2 साल डलहौजी में जाके पढ़ेंगे। एडवांटेज ये होता है नंबर 1, 2 साल जो आप सीबीयू में पढ़ाई कर रहे हैं आपका फी स्ट्रक्चर कम है डलहौजी से, साथ साथ लिविंग एक्सपेंस सिडनी सिटी में कम आता है हैलिफैक्स से, हैलिफैक्स एक्सपेंसिव सिटी है। इसके साथ साथ टाइम फ्रेम सीबीयू का कम है, फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स है, आपको आराम से प्रोसेसिंग आपका एडमिशन हो जाता है। इसके साथ साथ एक और एडवांटेज आपके पास है वो ये, अगर आप 2 साल पढ़ने के बाद सीबीयू में आप एग्जिट लेना चाहते हैं प्रोग्राम से तो आप कर सकते हैं ऐसा, ये आपका अपना डिसीजन है, आपको 2 साल इसमें पढ़ना है कि पूरे 4 साल कंप्लीट करने हैं। 2 साल के बाद आपको सीबीयू से 2 इयर्स का यूजी डिप्लोमा अवार्ड हो जाता है और बाकी आप फिर बाद में जो भी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके लिए जा सकते हैं। देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है एंड हाँ, इस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में 2+2 बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में डिफरेंट इंजीनियरिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे कि सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, मिनरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल। सो ये सब आप इंजीनियरिंग ऑप्शन इसमें मिलते हैं आपको, इनमें से आप लेकर के आगे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास एक और इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो है बीईटी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ओवरऑल ड्यूरेशन इज 3 years, 3 साल का प्रोग्राम होता है ये यूजी। हियर वी हैव गॉट 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स, इसमें 4 डिफरेंट स्ट्रीम्स होते हैं। नंबर 1 केमिकल, नंबर 2 एनवायरमेंटल, नंबर 3 पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सीबीयू इज नोन फॉर इन एंटायर कनाडा, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए सीबीयू जाना जाता है। पूरे कनाडा में सिर्फ 3 या 4 ही इंस्टीट्यूशन है पूरे कनाडा में जो ऑफर करते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, उनमें से हम एक हैं। और सेम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री आपको मिलता है नोवा स्कोशिया में, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी आपको सेम लोकेशन पे मिलते हैं इस प्रोग्राम के बाद। यूनिक प्रोग्राम है, रेयर टू फाइंड है, आप कंपटीशन अवॉइड करते हैं इसमें, हायर पेड सैलरीड जॉब्स होते हैं इसमें, तो मैं यूजुअली इंजीनियरिंग में स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूं आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए जाएं। सेम यही 4 इंजीनियरिंग किसी स्टूडेंट को 2 साल के लिए भी मिल सकती हैं पोस्ट डिग्री, अगर किसी ने ऑलरेडी इंजीनियरिंग किया हुआ है इंडिया से, बीटेक या बीई किया हुआ है 4 साल का आपने, तो सेम 4 इंजीनियरिंग आप पोस्ट डिग्री लेवल 2 साल के लिए कर सकते हैं। उसके लिए जैसे लेट सपोज किसी ने मैकेनिकल में बीटेक किया है या बीई किया है, तो स्टूडेंट कैन हैव पोस्ट डिग्री 2 years इंजीनियरिंग इन पेट्रोलियम और मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। किसी ने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया है सो यू कैन गो फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। If you have done something in chemical, then we have chemical, electronics and electrical, again you can go for electronics and control. If you are from computer science or IT background, then you can go for business analytics. So I do have an option for almost every branch, right? Then what would be the requirement for post degree, right? For UG obviously
for UG 3 years program or 2+2 engineering program, the requirement you must have physics, chemistry, mathematics in year 12. आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नॉन मेडिकल से आपने 12th किया हो। और परसेंटेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी सेम है, ओवरऑल 55%, 55% एंड नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%। यानी जो मेन 5 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं 12th में वो इंडिविजुअली अलग अलग कोई भी 50% से कम, 50% से कम ना हो। देन वी कम टू the post degree engineering part. To have admission in post degree 2 years engineering, you must have overall 55% marks in your bachelor degree, BTech or BE, whatever you have done, 4 years that should be. And along with that, during the bachelor you must have studied chemistry and mathematics. For electronics and control, only mathematics. यानी कि आपने जो बीटेक किया है या बीई किया है 4 साल का, आपको 2 साल के लिए इंजीनियरिंग ऑप्शन में जाना है, तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, और साथ साथ आपने बैचलर में मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल में जाने के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई रिक्वायरमेंट है बैचलर में, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट है पोस्ट डिग्री इंजीनियरिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेस पब्लिक हेल्थ। बैचलर ऑफ हेल्थ साइंसेस पब्लिक हेल्थ, ड्यूरेशन इज 4 years स्टैंडर्ड बैचलर, 4 साल की स्टैंडर्ड डिग्री होती है ये पब्लिक हेल्थ। इसमें एडमिशन के लिए आपने मेडिकल स्ट्रीम में 12th किया हो, और साथ में मेडिकल स्ट्रीम में 12th के साथ साथ आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा हो, तो आपको एडमिशन मिलता है इस प्रोग्राम में। और सेम प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ 2 years पोस्ट डिग्री भी अवेलेबल है, 2 years पोस्ट डिग्री भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने बैचलर डिग्री ऑलरेडी कोई बैचलर डिग्री आपने हेल्थ एरिया में किया है, तो आपको 2 years पोस्ट डिग्री ऑप्शन में भी एडमिशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट। अगर आपने बैचलर डिग्री किया है फार्मेसी में, या आपने नर्सिंग में डिग्री किया है, BDS किया है, MBBS किया है, बायोटेक किया है, या MD किया है, तो आपको एडमिशन मिलता है 2 years पोस्ट डिग्री पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, विच इज रेलेवेंट हेल्थ एरिया प्रोग्राम, रेयर टू फाइंड इन कैनेडा, 2 years हेल्थ प्रोग्राम। तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, आप असेसमेंट करा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगा पोस्ट डिग्री के लिए, ओवरऑल आपका 55% होना चाहिए, 55% होना चाहिए बैचलर में, और साथ साथ देयर आर सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्सेज एज वेल, सब्जेक्ट्स एज वेल, डिपेंडिंग ऑन असेसमेंट विल कंफर्म यू वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर द प्रोग्राम। द अट्रैक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इज, इसका मेन जो एडवांटेज है पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का वो ये है, एक एग्जाम होता है कनाडा में, CPHI, सर्टिफिकेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। वो एग्जाम देने के बाद में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं वो एग्जाम, तो आप सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर बन जाते हैं। यू बिकम सर्टिफाइड पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर आफ्टर क्वालिफाइंग दिस CPHI एग्जाम, एंड विच मीन्स यू बिकम लाइसेंस्ड इन कैनेडा। लाइसेंस्ड हो जाते हैं आप एक तरह से कैनेडा में, एंड यू कैन हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टरवर्ड्स। After this program, I have another program which is Bachelor of Science. अगला जो प्रोग्राम है वो है BSc, 3 years as well as 4 years। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, 3 साल भी आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, 4 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। Here we have 4 different streams, इसमें 4 different streams होते हैं। Number 1 mathematics, number 2 chemistry, number 3 psychology, number 4 biology। टू हैव एडमिशन, इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है BSc बायो, BSc बायोलॉजी, BSc साइकोलॉजी एंड BSc केमिस्ट्री, इन तीनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम में 12th किया है विदाउट मैथमेटिक्स, तो आपको एडमिशन मिल जाता है। रेलेवेंट है बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी BSc, एंड केमिस्ट्री भी, क्योंकि केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड मेडिकल प्लस मैथ्स, तीनों ही स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो BSc केमिस्ट्री जा सकते हैं तीनों ही स्टूडेंट। एंड BSc बायोलॉजी, BSc साइकोलॉजी, मेडिकल स्ट्रीम विदाउट मैथमेटिक्स भी जा सकते हैं, राइट। तो आप ले सकते हैं एडमिशन, चाहे आप 3 साल में अप्लाई कीजिए, 4 साल में अप्लाई कीजिए, वो आपका अपना चॉइस है, कर सकते हैं। परसेंटेज रिक्वायरमेंट इसमें भी सेम है, जो यूजी का सबका सेम है, मैं बता रहा हूं आपको। ओवरऑल 55%, नो मेन सब्जेक्ट लेस देन 50%।
नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ साइंस ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, अगेन रेयर टू फाइंड प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है हेल्थ एरिया का। इसका ड्यूरेशन है 2+2, इसको हम 2+2 बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 साल स्टूडेंट सीपीयू में पढ़ेगा इनिशियली, बाकी के 2 साल जो बाकी के 2 इयर्स हैं स्टूडेंट पढ़ने जाता है एमएसटीयू, माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी, हैलिफैक्स। Halifax is not too far away from the Sydney city. It is just 3.5 hours of the drive, and by flight you can reach Halifax just within 50 minutes. तो हैलिफैक्स जो सिटी है, कैपिटल सिटी है, और नोवा स्कोशिया का लिविंग एक्सपेंस ज्यादा होता है, वहां पे एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर मैं ट्रैवल का बात करूं, अगर आपको सिडनी से हैलिफैक्स जाना है तो 3-3.5 घंटे आपको लगते हैं बाय ड्राइव, अगर आप बाय रोड जाते हैं। फ्लाइट से अगर आप जाते हैं तो 40 से 50 मिनट आपको लगते हैं पहुंचने में। तो वो आपका वहां पे टाइम ड्यूरेशन है ट्रैवल का। तो ये जो प्रोग्राम है ह्यूमन न्यूट्रिशन, 2 साल आप सीबीयू पढ़ रहे हैं, 2 साल आप एमएसवीयू पढ़ रहे हैं, तो सेम एडवांटेजेस आपको मिलते हैं जो मैंने इंजीनियरिंग में बताए थे। 2 साल के लिए फीस आपका कम होता है, 2 साल के लिए लिविंग एक्सपेंस आपका कम होता है, इजीली आपका टाइम फ्रेम कम होता है, सीबीयू में एडमिशन आपका हो जाता है इजीली, कम आपको स्ट्रगल करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड दी प्रोसेसिंग टाइम। सो वो इट इज efficient in CPU than the other universities. Also, here one more thing I would like to tell you guys is you have to study entire 4 years. आपको पूरे 4 साल यहाँ पे पढ़ने होते हैं, और एडमिशन के लिए आपका मेडिकल स्ट्रीम होना चाहिए 12th में, प्लस मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, राइट? तो तब आपको एडमिशन मिलता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसका बहुत डिमांड है, स्पेशली नोवा स्कोशिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, और सबसे ज्यादा स्किल्ड लेबर का जो डिमांड है नोवा स्कोशिया में है वो हेल्थ एरियाज में ही है। तो इसलिए जितने भी हेल्थ प्रोग्राम हमारे पास हैं, जैसे मैंने पब्लिक हेल्थ आपको बताया, ह्यूमन न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, बीएससी बायोलॉजी बताया, बीएससी साइकोलॉजी बताया, तो ये सब रिलेटेड टू हेल्थ एरियाज हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं सेम प्रोविंस में नोवा स्कोशिया में इन प्रोग्राम्स के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी स्टडीज। The duration is 3 years as well as 4 years. We have both the option available in this program. 3 साल के लिए भी आप कर सकते हैं अप्लाई, 4 साल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। Who can join this program? कौन एडमिशन ले सकता है बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी स्टडीज में? जिसने ईयर 12 में 12th क्लास में इंग्लिश पढ़ा है, सिर्फ इंग्लिश का ही रिक्वायरमेंट है, बाकी आपने कोई भी 4 सब्जेक्ट पढ़े, आपको एडमिशन मिल जाता है बैचलर ऑफ आर्ट्स कम्युनिटी स्टडीज में। इसमें हमारे पास काफी सारे एरिया ऑफ स्टडीज हैं। वी हैव गॉट सो मेनी एरिया ऑफ स्टडीज अंडर दिस प्रोग्राम, लाइक communication, applied theater, dramatic literature, English, history, music, French, and psychology, sociology, political science, religious studies, sports and leadership activity. So that's a really good stream related to sports, right? I usually recommend to students, especially from Haryana or Punjab, I refer these such sports related streams in arts to the students who belong to Punjab and Haryana. They are actually actively look for these such specializations, so we do have that. Also कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्पेशलाइजेशन है इसमें, उसमें भी बड़े अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? बाकी तो वैसे तो सभी में कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ स्टडीज, योर इंटरेस्ट, विच एरिया यू हैव इंटरेस्ट इन। रेस्ट कोऑप अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं बताना चाहूंगा। कोऑप अपॉर्चुनिटीज हमारे ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम में मिलती है स्टूडेंट्स को, और नाउ इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, कितने आप अच्छे हो अपनी स्टडीज को लेके, कितना अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं कोऑप अपॉर्चुनिटीज के लिए, उस पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है बैचलर ऑफ आर्ट एंड साइंस इन एनवायरमेंट, अ रियली गुड प्रोग्राम, मोस्ट पॉपुलर यूजी प्रोग्राम अमंग लोकल स्टूडेंट्स। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है प्रोग्राम लोकल स्टूडेंट्स के बीच में, सबसे ज्यादा लोकल स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास इस प्रोग्राम में। बैचलर ऑफ आर्ट एंड साइंस इन एनवायरमेंट, ये प्रोग्राम है रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, वाइल्ड साइंस, वाइल्ड लाइफ,
आपको इसमें फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ने को मिलता है, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। एंड द लोकेशन नोवा स्कोशिया इज नोन फॉर नेचुरल ब्यूटी, लोकेशन उससे सुटेबल है, तो प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको सेम प्लेस पे मिल पाते हैं इस प्रोग्राम के बाद। और सबसे ज्यादा लोकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कभी कभी ये प्रोग्राम आउट ऑफ द कैपेसिटी हो जाता है, प्रोग्राम होल्ड पे चला जाता है, बंद हो जाता है कभी कभी, क्योंकि लोकल स्टूडेंट्स में बहुत पढ़ते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि लोकल स्टूडेंट्स किसी प्रोग्राम को फुल कर देते हैं, ये ऐसा ही एक प्रोग्राम है। इसमें एडमिशन के लिए आपका मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है 12th में, और इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स, 4 साल की स्टैंडर्ड बैचलर होती है। ये बहुत ही इंप्रेसिव प्रोग्राम है। अगर कोई स्टूडेंट सिंसियरली एनवायरमेंट को पढ़ना चाहता है, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। इसके बाद में मेरे पास प्रोग्राम्स हैं पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमास, 3 पोस्ट बैकलरेट डिप्लोमास, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स। ड्यूरेशन इज 2 इयर्स, 2 साल की ड्यूरेशन है, 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर्स होते हैं, जिसमें out of 4 semesters you need to study only 3 semesters. For last semester, 4th semester, there would be either co-op, work term और research project. यानी कि 4 सेमेस्टर में से आप 3 सेमेस्टर की पढ़ाई करेंगे। लास्ट जो आपका 4th सेमेस्टर रहेगा उसमें या तो आपको वर्क टर्म मिलता है, यानी कि आपको कोप मिलता है, या फिर आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करने को मिलता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्या आपने परफॉर्म किया है प्रोग्राम में। तो ऑल एंड ऑल मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यस, पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप अच्छा ग्रेड्स ला पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे अब्रॉड। इसमें एडमिशन के लिए बिजनेस मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यू कैन हैव एडमिशन विद अ डिग्री इन एनी एरिया वेदर 3 इयर्स और 4 इयर्स विद ओवरऑल 50%। यानी कि आपने जो डिग्री किया है, 3 साल किया है, 4 साल किया है किसी भी एरिया में, और आपने ओवरऑल 50% मार्क्स लिए हैं, उसमें 50% मार्क्स लिए हैं, तो आपका एडमिशन मिलता है बिजनेस मैनेजमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दोनों में से किसी में भी। और अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स में एडमिशन के लिए आपको ओवरऑल यू मस्ट हैव 57% मार्क्स इन योर bachelor, whether 3 years or 4 years. Along with that, you must have studied mathematics or statistics twice during your bachelor, and each time you must have 57% मार्क्स। यानी कि ओवरऑल 57%, 57% मार्क्स बैचलर में, चाहे 3 साल बैचलर आपने की है या 4 साल बैचलर आपने की है। उसके साथ साथ अगर आपने मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, वो भी 2 बार बैचलर में, और दोनों बार ही आपका 57% है, तो आप एलिजिबल होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में। देन आई हैव अनदर प्रोग्राम, मेरे पास एक और प्रोग्राम है यूजी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। कोई भी स्टूडेंट जिसने 12th क्लास पास किया है किसी भी स्ट्रीम में, उनको एडमिशन मिलता है इस प्रोग्राम में। So any student who have passed out year 12 with any stream can have admission in public administration and management for 2 years. And the percentage requirement is again same, overall 55% with no main subject less than 50% for UG program. Then I have MBA in Community Economic Development, 2 years program. The requirement is 65% marks in bachelor's, whether 3 years or 4 years. Along with that, GMAT scores 500, यानी कि 65%, 65% आपके मार्क्स होने चाहिए बैचलर में, चाहे आपने 3 साल की बैचलर की है या 4 साल की बैचलर की है। उसके साथ साथ GMAT स्कोर आपका होना चाहिए कम से कम 500, 500, तब आपका एडमिशन मिलता है MBA में केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में। जितनी भी रेपुटेड पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं अब्रॉड में, स्पेशली US, कनाडा, UK में MBA प्रोग्राम के लिए मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज GMAT स्कोर्स मांगते हैं, जो भी पब्लिक एंड रेपुटेड अच्छी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। ऐसे ही केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में भी GMAT स्कोर्स मैंडेटरी है। इसके साथ साथ यही सब प्रोग्राम है जो अवेलेबल हैं फॉर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, आईएलटीएस रिक्वायरमेंट क्या है। आईएलटीएस रिक्वायरमेंट इज 6.5 ओवरऑल, नो बैड लेस देन 6, यानी कि ओवरऑल 6.5 होना चाहिए आईएलटीएस, और कोई भी सिंगल मॉड्यूल 6 से कम ना हो।
PT इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, PT भी एक्सेप्टेबल है। PT में आपका होना चाहिए दैट शुड बी ओवरऑल 59, नो इंडिविजुअल मॉड्यूल लेस देन 50, यानी ओवरऑल 59 और कोई भी सिंगल मॉड्यूल 50 से कम ना हो। वी ऑल्सो एक्सेप्टिंग डियोलिंगो, अभी आजकल की सिनेरियो देखते हुए डियोलिंगो भी एक्सेप्ट हो रहा है एडमिशन के लिए। 115 फॉर यूजी प्रोग्राम्स, 124 पीजी पोस्ट डिग्री और पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमास, यानी कि 115 आपका स्कोर होना चाहिए डियोलिंगो में यूजी प्रोग्राम्स के लिए और 120 होना चाहिए पोस्ट डिग्री, पीजी या फिर पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमास के लिए। अगर आपने कोई एग्जाम नहीं दिया है अभी तक इंग्लिश एग्जाम, तो आप कंडीशनल ऑफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपका फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम अभी रह रहे हैं, रिजल्ट अवेटेड है, या तो भी आप ले सकते हैं एडमिशन कंडीशनल ऑफर। और अगर आपने 12th के एग्जाम नहीं दिए हैं अभी तक, कुछ रह गए हैं आपके कोविड-19 की वजह से, रिजल्ट अवेटेड है, तो भी आप कंडीशनल ऑफर होल्ड कर सकते हैं, ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सितंबर 2020 ओपन है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी होता है $103, $103, $103 आपकी एप्लीकेशन फी लगती है, और वो तभी आपकी चार्जेबल होती है जब आपका प्रोफाइल एलिजिबल है यूनिवर्सिटी में और सीट्स अवेलेबल है जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें, तो तभी चार्जेबल। इट इज ओनली चार्जेबल इफ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम एंड वी हैव अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स इन द प्रोग्राम। We accept up to 10 years of the study gap, 10 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल होता है किसी भी प्रोग्राम में। उसके साथ साथ अप टू 10 बैकलॉग अटेम्प्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, सो 10 तक के बैकलॉग अटेम्प्ट्स एक्सेप्टेबल हैं पीजी पोस्ट डिग्री पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होती हैं सीबीयू में, डिपेंडिंग ऑन योर एकेडमिक स्कोर्स। आपका एकेडमिक स्कोर क्या है उस पर डिपेंड करता है आप कितनी स्कॉलरशिप किस तरह से ले पाएंगे। सो आप स्कॉलरशिप से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप अभी इन लेट्स सपोज आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं है लेकिन आप एडमिशन ले सकते हैं, एकेडमिक क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो आप पढ़ते हुए स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, पढ़ते हुए भी आपके पास स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं सीबीयू में। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीयू का एम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है दैट इज मोर देन 90%। CBU has got more than 90% of the employment ratio, more than 80% of the visa grant ratio. Also, the industries we have got in Nova Scotia, क्या-क्या industries हैं Nova Scotia में? Number 1, hospitality and tourism. Number 2, import export, ports. We have so many ports in Nova Scotia. Ports हैं काफी सारे यहाँ, shipment होता है तो import export होता है। इसके बाद we have manufacturing units in different cities. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं यहाँ पे, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, माइनिंग माइंस है, माइनिंग होता है। इसके साथ साथ ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री है हैलिफैक्स में। तो काफी सारी ये मेजर इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी यहाँ पे होती हैं जिसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर द प्रोग्राम आप ग्रैब कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन ऑन कैंपस भी अवेलेबल होते हैं, ऑफ कैंपस भी अवेलेबल होते हैं। ऑन कैंपस मोस्टली स्किल्ड जॉब्स होती हैं, सो यू शुड बी गुड एट दैट। एंड यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती है $20 से $25 यूजुअली ऑफर करती है 1 घंटे का पार्ट टाइम ऑन कैंपस जॉब्स के लिए। ऑफ कैंपस जॉब्स में जो बेसिक जो पे स्केल है, एवरेज जो पे स्केल है यहाँ का वो है $13 पर आवर, वो आपको मिलता है, दैट इज अगेन इम्प्रेसिव। ऑल्सो the place is really beautiful. It is known for its beauty and one of the prime tourist destination around the world. It comes under top beautiful places in the world, right? Cape Breton. इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कि it is related to film and television industry about Nova Scotia. टाइटैनिक मूवी, हॉलीवुड मूवी, काफी बड़ा मूवी था अपने टाइम का और काफी पॉपुलर मूवी था। काफी पार्ट टाइटैनिक का यहाँ पे शूट हुआ है नोवा स्कोशिया में। और इसी के साथ साथ यहाँ पे उस टाइम पे टैक्स क्रेडिट चलता था, टैक्स फ्री इंडस्ट्री होता था फिल्म एंड टेलीविजन यहाँ पे।
और फिल्म इंडस्ट्री का टर्नओवर बहुत अच्छा होता था। स्टिल वी हैव फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री इन नोवा स्कोशिया इन अटलांटिक रीजन। सबसे बड़ा फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री नोवा स्कोशिया में ही है। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा से वो एडवांटेजेस बताना चाहता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। लोकेशन स्पेसिफिक, नंबर 1 मेडिकल इंश्योरेंस 1 साल का आप लेके जाते हैं, वो खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, दोबारा से लेना पड़ता है, दोबारा से खरीदना पड़ता है। तो आपको जो यहाँ पे इंश्योरेंस है प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर से आपको ऑफर करती है MSI कार्ड, वो आप ले सकते हैं। बाकी के सारे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस उसके बाद से नेक्स्ट ईयर से फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्ड से पे होते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज यहाँ पे है वो है वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस बहुत अच्छी है, फ्रीजिंग कोल्ड, इतनी ठंड नहीं पड़ती है, वो वेदर कंडीशंस नहीं है यहाँ पे। सेकंड वार्मेस्ट प्रोविंस है पूरे कनाडा का, सबसे दूसरा गर्म स्टेट है पूरे कनाडा का। यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है 0 से -9 रहता है सर्दियों में, विंटर में, समर में, गर्मियों में यहाँ पे जो टेम्परेचर चला जाता है 28 डिग्री 30 डिग्री तक चला जाता है, काफी गर्मी हो जाती है। और बाकी जो सीजन है उसमें रहता है 15 डिग्री 17 डिग्री 18 डिग्री इस तरह से टेम्परेचर रहता है। तो पूरे साल इतनी ठंड आपको नहीं यहाँ पे बियर करनी है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस इन कनाडा। अगर मैं बाकी जगह देखूं कनाडा में उससे कंपेयर करूं तो सबसे कम ठंड यहाँ पे पड़ती है क्योंकि कोस्टल एरिया है, अटलांटिक ओशन के पास है। इसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेज आपको है यहाँ पे वो है लिविंग एक्सपेंस। आपके रहने खाने का खर्चा वो बहुत कम आता है यहाँ पे। अगर मैं कैंपस अकोमोडेशन की बात करूं, हॉस्टल जो होते हैं रूम्स यूनिवर्सिटी में, केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी में आपको $4500 में शेयरिंग बेसिस डॉर्मेट्री अकोमोडेशन मिल जाता है 1 साल के लिए। इसके बाद अगर मैं ऑफ कैंपस बात करूं, कैंपस से बाहर सिटी में जो अकोमोडेशन जो आपका लिविंग है वो कितना आएगा, 1 महीने का $600 के आसपास में आपका रूम रेंट, आपका ग्रोसरी, आपका ट्रैवल, तीनों चीजें कवर हो सकती हैं। और जो ट्रैवल चार्जेस हैं यहाँ पे वो $60 में, $60 में आपको एक पास बनता है जिसमें आप पूरा केप ब्रिटेन ट्रैवल कर सकते हो। सिडनी सिटी नहीं, पूरा केप ब्रिटेन आप ट्रैवल कर सकते हैं अनलिमिटेड पूरे महीने के लिए। इसके अलावा जो एडवांटेज आपके पास होते हैं फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। जो पोस्ट बैकलॉरेट डिप्लोमास हैं, बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, इनका फीस स्ट्रक्चर है पूरे 2 साल का, पूरे प्रोग्राम का अप्रोक्सीमेटली $26,000 यानी $26,000 के आसपास पूरे 2 साल का फीस स्ट्रक्चर है। जो बाकी सारे प्रोग्राम है उनका फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है फ्रॉम $17,400 to $18,600 अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर मेडिकल प्लान, यानी कि $17,400 से लेकर के $18,600 तक 1 साल का फीस है बाकी सारे प्रोग्राम्स का, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम कि किस प्रोग्राम में आप जा रहे हो। और 1 साल का आपका उसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो एडवांटेज आपके पास यहाँ है वो है इंटरनेशनल एक्सपोजर, यानी कि आपको एक्चुअल में आप पहुंचते हो रियल कनाडा, अब्रॉड कनाडा, जहां आपको ज्यादा पॉपुलेशन फॉरेन लोगों का मिलता है। इंडियन स्टूडेंट्स भी होते हैं कैंपस में, 5000 से ज्यादा स्टूडेंट है जिसमें से 1000 के आसपास इंडियंस हैं, 800-900 हैं जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, और बाकी जितने स्टूडेंट्स सब एक्चुअल कैनेडियन हैं, लोकल स्टूडेंट्स है काफी। तो आपको मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है, वो सब चीजें सीखने का मिलता है मौका जो आपको एक्चुअल में मिलना चाहिए अब्रॉड में। ये एडवांटेजेस आपके पास हैं। लोकेशन स्पेसिफिक यहाँ पे यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 70 साल का हिस्ट्री है यूनिवर्सिटी का। उसके साथ साथ कैंपस काफी बड़ा है, काफी फैसिलिटीज आपको उसमें मिलती है, फ्री एयरपोर्ट पिकअप मिलता है, फ्री वीजा काउंसलिंग सेशन मिलते हैं कैंपस में। कैंपस ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट की दूरी पे है सिडनी एयरपोर्ट से, 10 से 15 मिनट लगते हैं सेंटर एरिया डाउनटाउन से कैंपस पहुंचने में, ज्यादा दूर नहीं है सिटी से, सिटी के पास में ही है। और इसी के साथ साथ जो कैंपस में आपको चीजें मिलती हैं, हॉस्टल्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, लाइब्रेरी, वर्कशॉप्स, लैब्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज, जिम एंड रिसर्च सेंटर जहाँ पे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। नंबर 1 सेल्फ एनर्जी जनरेटिंग कैंपस है नॉर्दर्न अमेरिका का।
तो ये आपको कनाडा में एक ऐसा यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी करने का मौका मिलता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत एक्टिविटीज होती हैं सीबीयू में। इट इज नोन फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। रिसेंटली कुछ महीने पहले इवेंट हुआ था जिसमें 700 से ज्यादा एथलीट्स परफॉर्म करे थे कैंपस में। More than 700 athletes performed on campus in the event. It was an athletic event happened in campus Capital University, and so many athletes from different places from entire Canada came to the campus to perform, to participate in such event. तो स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत होते हैं, जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस तरह के इवेंट्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो पार्ट ले सकते हैं। नाउ so this is all about the university and the location. Now I'll go through some comments I have got here, the queries I have got. I'll respond all the queries one by one. Number one, the query is from Masood Sheikh. Masood Sheikh है, उन्होंने query पूछा है, वो कह रहे हैं कि I have 10 years of the study gap. Is there any chance I can get the admission and visa as well? Mr. Masood, I want to tell you that yes, you can have admission if you have 10 years of the gap. We accept up to 10 years of the study gap for our programs. You can apply, you can have the admission. And yes, if you are applying for any post-degree program, so you can have better opportunities, better positive outcome of your visas as well, because you are going a really good location and a public university, must be going with a good program if you are meeting the criteria. So if you can justify to High Commission for your gap, so yes, you can have the visa grant as well. I've seen students getting visas with the 10 years of the gap in Cape Breton University. So many students are there. Then we have another query which is this is from Khushbu. She is asking whether we accept distance education or not. I'm so sorry Khushbu, we do not accept distance and the open schooling. Distance education, open schooling accept नहीं करता है CBU. Regular होना चाहिए, that's the only acceptable education. तो आप apply कर सकते हैं. What else? Okay, this is all in terms of the queries I have got today. So guys, if you have any other queries, any other questions, अगर और कुछ आपको जानना है, कुछ और इंक्वायरी आपको चाहिए, 1-on-1 सेशन करना चाहते हैं आप मेरे साथ, so you can get back to the Networth Immigration Solutions. आप नेटवर्थ इमिग्रेशन की टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, शेड्यूल करा सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट्स छोड़ सकते हैं, अपने जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आपके कमेंट्स को रेस्पॉन्स दिया जाएगा एंड द टीम फ्रॉम नेटवर्थ इमिग्रेशन दे विल गेट बैक टू यू। वो आपको पक्का कॉल करेंगे, आपकी क्वेरी डिस्कस करेंगे एंड मेरे साथ आपकी प्रोफाइल को एसेस कराएंगे और आपको रेलेवेंट आंसर्स मिलेंगे आपकी क्वेरीज के। सो यू कैन गेट बैक टू दी नेटवर्थ इमिग्रेशन। वी आर दी ऑथराइज्ड partners. They are the authorized partner with Cape Breton University, working for Cape Breton University since long, doing really good. Thank you so much guys, thanks for your time, thanks for watching us, thank you, and thanks again Networth Immigration team. Thank you so much, stay safe, stay home, thank you, goodbye, good luck, all the best.